हेलो गाइस, मैं हूं तन्मय भट्ट और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तन्मय भट्ट में। दोस्तों, हमने सी लैंग्वेज के पार्ट 20 में हमने देखा था सी इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल्स के बारे में। फाइल इनपुट आउटपुट कैसे लेती है उसके बारे में हम बात करने वाले। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं फाइल के बारे में। अ फाइल रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स regardless और of it being a text file or a binary file. C programming language provides access on high-level functions as well as low-level calls to handle file on your storage devices. This chapter will take you through the important calls for file management. अब दोस्तों हम बात करते हैं ओपनिंग फाइल्स के बारे में। You can use the fopen functions to create a new file or to open an exciting file. This call will initialize an object of the type file, which contains all the information necessary to control the stream. The protocol of this function call is as follows: file fopen const character multiple file name const character or mode. Here file name is a string literal which you will use to name your file and access word can have one of the following values. R open an exciting text file for reading purpose. W opens a text file for writing. If it does not exist, then a new file is created. Here your program will start writing content from the beginning of the file. A opens a text file for writing in appending mode. If it does not exist, then a new file is created. Here your program will start appending content in the exciting file content. R plus opens a text file for both reading and writing. W plus open a text file for both reading and writing. It first truncates the file to 0 length. If it exists, otherwise create a file. If it does not exist, A plus opens a text file for both reading and writing. It creates that file. If it does not exist, the reading will start from the beginning but writing can only be appended. एक कोड हम देखते हैं उसके बारे में। हैज इंक्लूड stdi.h इंटीजर मेन में, कैपिटल में फाइल और मल्टीपल यानी कि पॉइंटर फाइल इक्वल f ओपन। हमें जो भी फाइल बनाई है उसको हमें ओपन करना होगा, इसलिए हमें फाइल ओपन करनी होगी। example.txt हमने एक फाइल बनाई एग्जाम्पल की और स्ट्रिंग में हमने लिखा है r। इफ़ की कंडीशन ली है फाइल इक्वल नल। printf में हमें लिखा है फाइल कुड नॉट बी ओपन एंड और रिटर्न 1 करेगी। जो भी हमने फाइल ओपन की है उसके बारे में, वो फाइल हमें क्लोज तो करनी होगी, इसलिए f क्लोज फाइल और रिटर्न 0। अब दोस्तों हम बात करते हैं राइटिंग अ फाइल के बारे में। फॉलोइंग इज द सिंपल लेस्ट फंक्शन टू राइट इंडिविजुअल कैरेक्टर टू अ स्ट्रीम। इंटीजर f puts इंटीजर c और फाइल पॉइंटर fp। The function fputs writes the character value of the argument c to the output stream referenced by fp. It returns the written character written on success, otherwise EOF if there is an error. You can use the following functions to write a null terminated string to a string. Integer fput const character pointers s file or pointer fp. The function fputs writes the string s to the output stream referenced by fp. It returns a non-negative value on success, otherwise EOF is returned in case of any error. You can use int
f printf file pointer fp cons character star format function as well to write a string into a file. Try the following exam. Make sure you have /tmp directly available. If it is not, then before proceeding you must create this directory on your machine. Has include std main फाइल और स्टार एफ पी हमें फाइल ओपन करनी है, एफ ओपन स्टार टीएमपी और /tmp और /test.txt और डब्ल्यू प्लस राइटिंग मोड में हमें लिखना है, इसलिए हमें डब्ल्यू प्लस एफ प्रिंट एफ पी और दिस इज टेस्टिंग फॉर एफ प्रिंट एफ और एफ पुट्स दिस इज टेस्टिंग फॉर एफ पुट /n और एफ पी। हमने जो भी फाइल ओपन की है उसे हमें क्लोज करना होगा, इसलिए एफ क्लोज एफ पी। व्हेन द अबव कोड इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड इट क्रिएट्स a new file test.txt in /tmp directly and writes two lines using two different function. First, writing data to file. उसका एक कोड देखते हैं हम। has include stdi.h integer main file star file और फाइल ओपन example.txt राइटिंग मोड में, इसलिए w। if की कंडीशन है फाइल इक्वल नल प्रिंट एफ फाइल को नॉट बी ओपन एंड और /n और रिटर्न हमें 1 कराना है। एफ पुट्स ए और फाइल और राइट अ स्ट्रिंग टू फाइल एफ पुट्स हेलो वर्ड और फाइल के अंदर में स्टोर करेगी। एफ प्रिंट एफ फाइल और %s और %d नंबर 10। राइट अ ब्लॉक ऑफ डेटा टू फाइल कैरेक्टर डेटा हमने लिया है, स्ट्रिंग में हम लिखेंगे डेटा। एफ राइट डेटा साइज ऑफ कैरेक्टर साइज ऑफ डेटा और फाइल और हमने जो भी फाइल ओपन की है उसे हमें फिर से क्लोज कराना होगा, यानी कि एफ क्लोज और फाइल और रिटर्न 0। अब दोस्तों हम बात करते हैं रीडिंग अ फाइल के बारे में। गिवन बिलो इज द सिंपलेस्ट फंक्शन टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। Integer fgets file *fp. The fgets function reads a character from the input file referenced by fp. The return value is the character read, or in case of any error it returns EOF. The following function allows to read a string from a string. Character *fgets or character *buf buff or integer n of capital में file और *fp. The functions fgets reads up to n1 character from the input stream referenced by fp. It copies the read string into the buffer, यानी कि buff, appending a null character to terminate the string. If these functions encounters a new line character /n or the end of the file EOF before they have read the maximum number of characters, then it returns only the characters read up to that point, including the new line character. You can also use integer fscanf file *fp cons character *format functions to read strings from a file, but it stops reading after encountering the first space character. Has include stdi.h main file *fp character buff 255 fp f open /tmp और /test.txt हमने फाइल बनाई है। रीडिंग मोड में हमें लिखना होगा ये, इसलिए r fscanf fp %s और बफर printf 1% s /n और buff fgets buff
255 फाइल स्टार FP, प्रिंट F2 परसेंटेज S/N और बफ। इधर हमें बफ की वैल्यू 1 और 2 की दोनों की हमें वैल्यू फाइल के अंदर स्टोर करनी है। F gets F buffer 255 फाइल स्टार FP प्रिंट F3 परसेंटेज S/N बफ F क्लोज, यानी कि हमें 1, 2 और 3 की तीनों की वैल्यू हमें फाइल के अंदर हमें स्टोर करनी है। उसका आउटपुट देखिए, 1 दिस इज टेस्टिंग फॉर F प्रिंट F और दिस इज टेस्टिंग फॉर F पुट्स आएगा। अब दोस्तों हम बात करें रीड कंप्लीट फाइल के बारे में। हैज़ इंक्लूड stdi.h इंटीजर मेन कैपिटल लेटर में फाइल स्टार फाइल F ओपन example.txt हमें रीडिंग मोड में हमें लेना है, इसलिए R। इफ फाइल इक्वल नल प्रिंट F फाइल could not be opened /n return 1 integer ch while ch equal F gets file और not equal to EOF। हमें जो EOF लिखना है तो हमें इस तरह से हमें लिखना है, जो हमने while लूप के अंदर हमें लिखा है इस तरह से। प्रिंट F परसेंटेज C और CH कैरेक्टर है, यानी कि इसलिए आएगा परसेंटेज C। और फिर से हम F फाइल क्लोज और रिटर्न 0। हैज़ इंक्लूड stdi.h इंटीजर मेन, ये दूसरा वाला कोड है इसलिए। और कैपिटल अक्षर में फाइल स्टार फाइल इक्वल F ओपन example.txt R रीडिंग मोड में। और इफ फाइल इक्वल नल प्रिंट F फाइल could not be opened /n रिटर्न 1 कैरेक्टर बफर 256। और वाइल के लूप के अंदर हमें लिखना होगा F gets बफ साइज ऑफ बफर और फाइल नॉट इक्वल टू नल प्रिंट F परसेंटेज S और बफर। हमें यहाँ पे रीड एंड प्रिंट ईच लाइन अंटिल द एंड ऑफ लाइन फाइल के बारे में हमें लिखना होगा। F क्लोज फाइल और रिटर्न 0। अब दोस्तों हम बात करें डिफरेंट फंक्शन टू रीड फाइल के बारे में। एक कोड हम देखते हैं। हैज़ इंक्लूड stdi.h इंटीजर मेन फाइल और फाइल हमने ओपन की है example.txt के बारे में और रीडिंग मोड में है, इसलिए R। इफ फाइल इक्वल टू नल प्रिंट F फाइल could not be opened /n और रिटर्न 1 इंटीजर ch और F gets फाइल और प्रिंट F कैरेक्टर रीड परसेंटेज C and /n कैरेक्टर लाइन 100 F gets लाइन साइज ऑफ और लाइन फाइल। फिर हमें लिखना है प्रिंट F में लाइन रीड और परसेंटेज S और लाइन। फिर हमें लिखना होगा इंटीजर न्यूमेरिक 1 और न्यूमेरिक 2। F स्कैन F इनपुट लेना है, यानी कि फाइल परसेंटेज D एंड न्यूमेरिक 1 एंड न्यूम 2। प्रिंट F नंबर्स रीड परसेंटेज D और परसेंटेज D/n नंबर 1 एंड नंबर 2। रीड अ ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम फाइल कैरेक्टर बफर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10। फ्रेड रीड कराना है कि नहीं, यानी कि फाइल रीड हमें करानी है, इसलिए F रीड बफर साइज ऑफ ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर 10 और फाइल। प्रिंट F डेटा रीड परसेंटेज S और /n बफर। F क्लोज फाइल रिटर्न 0। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में हमने बात की फाइल के बारे में। हम फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।